Okay, are you able to hear me now? Yes. Yes, ma'am. Yeah, chat, I'll just make it personal. 1 minute. Fine. So selective oxidation, I have to start, no? Yes, ma'am. Alcohols are oxidized using PCC or PC. I'll tell you what is PCC and PD. Your voice. Voice is not clear. No, ma'am. No. No, ma'am. Just let me check the internet connection. कनेक्शन तो बता रहा है बराबर. No, ma'am. Ma'am, but you can say that your voice is lagging. नहीं, कनेक्शन तो अच्छा ही है यहाँ पर. I checked just now. बीच में क्रैक हो रही है. यस मैम, बीच में क्रैक 400 के ऊपर है Mbps. नहीं, पता नहीं फिर क्यों. Are you all able to hear me Ma'am, now? what is PCC and PDC? Yes, ma'am. Oh, sorry, ma'am. हाँ, PCC and PDC, I'll tell you. PCC is pyridinium chlorochromate. Pyridinium Ma'am, your voice Chlorochrome. is lagging. Yes, ma'am. Just give me a moment. Okay, are you hear me? Is my voice still lagging? No, ma'am. Now it's clear. Oh ma'am, now it's clear. Okay. PCC is pyridinium chlorochromate. This is the structure of pyridinium chlorochromate. And PDC क्या है? बता रही हूँ. This is pyridinium chlorochromate. And PDC is pyridinium dichromate. This is pyridinium dichromate. Both these are selective oxidizing agents. They oxidize alcohol, primary alcohol to aldehyde and a secondary alcohol to ketone without affecting any other functional group. Okay. So it's only selective for alcohols, primary alcohol to aldehyde and secondary alcohols to ketone. So even if I have a compound something like this,
And to this, if I add PCC or PDC, the carbon-carbon double bond will not get oxidized. It will oxidize only the alcohol. It's a selective oxidizing agent. Did you all finish writing this? 1 minute. No, ma'am. I'm only- 1 degree to alcohol and 2 degree to ketones, right? 1 degree to aldehyde and 2 degree. मैम वो 1 डिग्री आपने किस चीज के लिखा, वो एकदम टॉप वाले के लिए, उसके जो नीचे रिएक्शन है? ये 2 डिग्री है, ऊपर वाला 1 डिग्री है. Did you all complete? No, One ma'am, second, 1 minute. 1 minute, ma'am. Third वाला allylic है ना? हाँ allylic है. Okay, ma'am. थर्ड वाला मैम allylic के दो. This is a allylic carbon, no? हाँ yes मैम. Carbon connected to a carbon having double bond. मैम लास्ट वाला रिएक्शन किसके लिए लिखा है आपने? ये प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मैंने बताया सिलेक्टिव है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा ये. सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में. Done, ma'am. Okay, finished. All of you have done. Yes, ma'am. Done, ma'am. It's good. Rajdeep, you have to give a separate heading for this, na? Selective oxidation. ये reactions of monohydrate में ही है ना? हाँ monohydrate में. Okay, ma'am. Now to this, if you add H2CrO4 in acetone, this is known as Jones reagent. This oxidizes a primary alcohol to carboxylic acid and a secondary alcohol to a ketone. So primary alcohol changes into carboxylic acid and secondary to a ketone. Again, this is specific only for primary and 2 degree alcohols. Ma'am, this is also under selective oxidation only. Yeah. All these reactions now, whatever I'm doing, are under selective oxidation. Okay. मैम यहाँ पे 1 डिग्री ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है ना? हाँ 1 डिग्री का कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 डिग्री का कीटोन. तो मैम उससे पहले एल्डिहाइड क्यों बना था? क्योंकि वो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी और पीडीसी. ओके मैम. मैम ये क्या जोन्स रिएजेंट के अंडर आएगी क्या ये दो, या वो उसमें ही है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन? सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं लिखो है. Jones reagent is a strong oxidizing agent. It is stronger than PCC. Okay, And- ma'am. Now, MnO2 is a selective oxidizing agent again. MnO2 only oxidizes allylic alcohols. What do you mean by an allylic alcohol? OH group Alcohol. connected Or to attached to the allylic carbon. हाँ, तो सिर्फ allylic alcohols को ऑक्सीडाइज करता है. अगर वो allylic प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कीटोन होता है.
So this oxidizes only allylic alcohols. मैम पीछे भी एल्डिहाइड तो बना था एलाइलिक अल्कोहल का। हाँ, पर वो जरूरी नहीं ना allylic हो। अगर मैं ये कंपाउंड ले रही हूँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। Is this an allylic नो alcohol? नो नॉट एलाइलिक, यस मैम। हाँ, but then this also will get oxidized by PCC or PDC. समझा? ओके मैम। But this last one won't get oxidized by MnO2. हाँ, last one ये वाला MnO. This one will not get oxidized by MnO2, but this one would. Okay, ma'am. Ma'am, what do 2-degree allylic alcohols give? Ketone. Yeah. Okay. Did you finish writing this? Yes, ma'am. Yes, ma'am, done. So if I have something like this, give me the product. मैम MnO2 में ऊपर वाला OH ऑक्सीडाइज होगा और मैम नीचे दो एल्डिहाइड ग्रुप्स बनेंगे। ऊपर और पीसीसी में नीचे कीटोन। वाला। यस मैम। समझा हाँ ये? मैम, यस मैम। Yes, ma'am. इसमें सब हो जाएंगे। इसका मैकेनिज्म नहीं है हम लोग को। नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, इसमें कार्बन ज्यादा कर दिए मैंने। और अगर इधर भी OH होता तो पीसीसी में वो भी हो जाता है। पीसीसी कंपैरेटिवली इतना सिलेक्टिव नहीं है ना। नहीं, MnO2 ज्यादा सिलेक्ट है क्योंकि MnO2 को सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल चाहिए। ओके मैम। मैम और जोन्स वाला वो 1 डिग्री और 2 डिग्री मतलब सबको होगा ना, करेगा ना ऑक्सीडाइज? 1 डिग्री को एसिड में करता है। हाँ यस जोन। मैम वो है, लेकिन अलाइलिक हो या ना हो। हाँ हाँ हाँ, सारे सारे। ओके। मैम आज आप एंड में बुकलेट भी डिस्कस करोगे? You want me to do that? Yes, मैम। कौन सा, एरोमेटिक वाला? हाँ मैम। हम TWT के डाउट से थोड़ा। हाँ मैम। तो लास्ट 45 minutes I'll take, not more than that. Okay? मैम MnO2 में जो राइट वाला OH ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अलाइलिक नहीं है ना। ओके मैम। Ma'am, can you show first page? Yeah, I saw the messages. PCC, PDC I've written here. I think one of you has asked what is PCC and PDC. So this is PCC and PDC I've written here. एमटी में एल्काइल का ज्यादा आएगा। क्या आएगा? एल्काइल का ज्यादा आएगा। MT में? यस मैम। MT का पेपर मैंने जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री बनाया है पूरा। ऑर्गेनिक कोई और बना रहा है, आई डोंट नो। आना तो चाहिए। हम सिलेबस में इतना ही होएगा ना कि लास्ट टाइम ज्यादा आया था कुछ अलग।
तुम्हारा तो हो गया है ना अल्काइल अराइल हैलाइड्स, हाँ मैम हो गया। इतना नहीं तो किया। किस बात की चिंता कर रहे हो? बड़ा ना। TWT नहीं हुआ तो इतना भी कॉन्फिडेंस हाँ मैम वही। हाँ, पर मैम बुकलेट इतना अच्छा नहीं गया। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ अच्छा बुकलेट डिफिकल्ट लग रहा है। मैम आप उसका भी कर सकते हो क्या डिस्कशन नेक्स्ट वीक में कभी? हाँ और एमटी कब है? मैम सैटरडे। सैटरडे को, पर अभी चलेगा नेक्स्ट वीक में आप कभी डिस्कस yes, कर। ma'am. नेक्स्ट वीक के देखो मैम। ठीक है, ये लिख लिया फर्स्ट पेज। यस यस मैम डन। मानस आई हैव डन। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने इजी रखा है। आई डोंट नो अबाउट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोई और बना रहा है। ठीक है नेक्स्ट। यस साक्षी, जोन्स विल ऑक्सीडाइज ऑल। कोई भी अल्कोहल हो, अगर वो अलाइलिक हुआ तो भी, बेंजाइलिक हुआ तो भी, जो भी, MnO2 इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। अगर MnO2 मैंने लिया तो इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा? अलाइलिक। हाँ, बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर केसेस ऑफ अलाइलिक ओनली, बिकॉज ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसको अलाइलिक कार्बन भी बोला जाता है। Okay. Okay, now this is a secondary alcohol. When you take aluminium isopropoxide in acetone. Now this is a selective oxidizing agent. It oxidizes only secondary alcohol. Okay, not primary. It oxidizes only a secondary alcohol to ketone. This oxidation is known as Opinior oxidation. It's aluminium isopropoxide in acetone. Ma'am, it forms ketone, right? Yeah. You all finished writing this? yes, ma'am. वेट अ मिनट मैम। मैम आप क्लास 10 में एक बार पिनाकोल वो आपने एक्सप्लेन किया था ना रिएक्शन, हाँ हाँ और एक बार कर सकते हो प्लीज? ठीक है, अभी ये अल्कोहल्स में ही आ जाएगा वो। ये करूंगी ना मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यस मैम। तो उसमें वो पिनाकोल और पिनाकोलन रीअरेंजमेंट कर लूंगी फिर से। ओके मैम। वो प्रोपेक्साइड के नीचे क्या लिखा हुआ है एसीटोन से पहले? इन एसीटोन। मैम पीसीसी भी 1 डिग्री 2 डिग्री करता है ना ऑक्सीडाइज? हाँ पीसीसी 1 डिग्री 2 डिग्री को अल्डिहाइड और कीटोन रिस्पेक्टिवली। ओके। कैन आई प्रोसीड? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ऑक्सीडेशन को कौन सा नंबर दिया था मैंने? मैम अभी 7 है शायद से। 7 So now 8. I have not done esterification. No? No ma'am. एक और बार कंफर्म करना था, पीसीसी पीडीसी 1 डिग्री और 2 डिग्री, और जोन्स भी 1 डिग्री और 2 डिग्री है। हाँ पर जोन्स 1 डिग्री को एसिड बनाता है। ओके मैम। और पीसीसी पीडीसी 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ओके मैम। Esterification is formation of an ester. When alcohols are treated with carboxylic acid in presence of a dehydrating agent like concentrated H2SO4. You can also use dry HCl.
Dry HCl is also a dehydrating agent. You will get the formation of ester. Esterification is an acid catalyzed reaction. In fact, even hydrolysis of ester, जो reverse reaction है, hydrolysis of ester is also acid catalyzed. इसलिए reaction क्या है? Reversible है. इसका mechanism we'll see. Medium is acidic because of H2SO4 or HCl. Could you tell me कहाँ पर protonation होगा? ऑक्सीजन मैम, कौन से वाले? नीचे वाला. Reason? मैम ऊपर वाला, फिर वो डबल Reason? बॉन्ड विथड्रॉ करेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन होता है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस Positive. प्लस. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट हो और जाएगा. रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज कर पाएगा. यस मिस. यस मैम. अगर यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, इज दैट पॉसिबल? नो मैम. हाँ, so protonation will occur on this oxygen. Sorry. Now, as this pi electron shifts, alcohol will act as a nucleophile and attack the carbon. Give me the formal charge. कौन से ऑक्सीजन पे है? नीचे वाले पे पॉजिटिव. What is IMP? इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन. हाँ, तो यहाँ से H+ निकलेगा and it will go to one of the oxygen. अब इस पे प्लस आया है. Now this will be removed easily as water. जैसे ये वाटर निकलेगा, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड. अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है. फाइनली क्या होगा? H+ निकलेगा and you will get the ester. वो फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि प्रोटोनेटेड एसिड है ना, प्रोटोनेटेड एसिड में से H+ निकल भी सकता है. ओके मैम. अब इसका जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्कोहल. ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म रिवर्स होता है उसमें. ओके, एस्टर का हाइड्रोलिसिस का रिवर्स मैकेनिज्म है. मैम IMP से जो अल्कोहल पे H था वो OH साइड पे चला गया ना? हाँ हाँ. Did you all finish writing this? What is Yes, ma'am. MPE? Polite मैम.
You are asking something? What is IMP? Yes, what is Intramolecular proton exchange. Intramolecular proton exchange. मैम वो नीचे फर्स्ट रो के लास्ट वाले फॉर्मूला में आर और आर कनेक्टेड है, नहीं आर डैश, सॉरी मैम। इधर ये यस मैम, वो आर डैश है ना? ये आर डैश है ना, कनेक्टेड नहीं है वो। लिख के हो गया है अभी कि नहीं? मैम लास्ट वाला लिख रहा हूँ। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so now supposing if I take this compound. Give me the product. I have labeled one of the oxygen as O18. O18 कहाँ पर होगा? एस्टर में होगा या वाटर में? Water, ma'am. वाटर। हम वाटर में होगा। मैकेनिज्म देखो और बाद में बात करो। Ester. All of you are agreeing? मैम एस्टर Ma'am, ester. All of you understood that ester में क्यों है? यस Yeah. मैम। Which steps tells you that? I'm the one where IMP. IMP ये वाला। takes place. ये Yes वाला। ma'am. Am I right? ये अल्कोहल जब अटैक करेगा ऑक्सीजन रह जाता है इधर हाँ। और ये H+ इसके साथ वाटर में निकल जाता है, करेक्ट? Yes ma'am. हाँ। Ma'am, what does 18 indicate? It's an isotope of oxygen, radioactive isotope. This is how they actually trace the path of मैम the. वापस बताओ ना, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया एस्टर? ये अल्कोहल है, अल्कोहल में O18 लिया है मैंने, यस मैम। तो वो O18 जब अटैक करेगा हाँ मैम। तो यहाँ पर ये H+ इधर दे देगा और वाटर Yes, sir. निकलेगा, तो वाटर में ये कार्बोक्सिलिक का OH आएगा और अल्कोहल का H आएगा। यस मैम। हाँ, तो O18 एस्टर में रहेगा। This is how they actually perform the reaction. They had actually taken a carboxylic acid and a labeled alcohol, and they found that the labeled oxygen was found in ester. So once they got this, then they gave the mechanism of the process. This is called as tracer technique. Have you heard about tracer technique? No ma'am. Tracer technique में they trace the path of the isotope. रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेते हैं और उसका पाथ ट्रेस करते हैं और उससे मैकेनिज्म निकालते हैं। Ma'am. हाँ बोलो। What do you mean by path? As in the path which they took to form the thing? Form Yes, the... yes. You know, tracer techniques are used in medicine also. Like, have you heard about the barium meal test? Yes ma'am. बेरियम मील टेस्ट में क्या करते हैं? रेडियोएक्टिव बेरियम वो पिलाते हैं। अगर कुछ ब्लॉकेज है, अगर फूड पाइप में या कहीं पे ब्लॉकेज है, so they'll trace that radioactive isotope which you are gulping down
It's a very thick liquid. That thick liquid, when you gulp it down, they use tracers, like they use a tracing machine to trace the path of your radioactive isotope through the gut. और कुछ कहीं पे blockage मिलेगा तो then they can easily remove that blockage. Okay. So medicine में भी use होता है ये. Even for forensic studies also use tracer technique. Forensic studies क्या होते हैं? The studies which link a crime. Yes. Okay. They find out ना कि इस इंसान की डेथ कितने बजे हुई हो, कि कितने बजे हुई थी, किससे हुई थी, वो सब ट्रेसिंग टेक्निक से यूज करते हैं. They can tell you the exact time of death also of a person. It is because of the C14 isotope which is there in nature. You know that in nature में C14 होता है. Yes, ma'am. C12 भी होता है. और जो Yes, ma'am. C14 to C12 का रेशियो फिक्स्ड है कार्बन नेचर डेटिंग में. हाँ, कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको. वेरी गुड. हाँ, अब ma'am. ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दोनों CO2 बनते हैं. Am I right? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. दोनों ये CO2 फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब फोटोसिंथेसिस होता है, दिस फॉर्म्स शुगर, ग्लूकोज. करेक्ट. Yes, ma'am. अब यहाँ पे C14 वाला ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे C12 वाला ग्लूकोज बनेगा. अब इनका रेशियो भी फिक्स होता है नेचर में. हम ये कंज्यूम करते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली वी कैन कंज्यूम प्लांट्स थ्रू एनिमल्स आल्सो. दोस पीपल हु आर ईटिंग नॉन-वेज, दे कंज्यूम both C14 as well as C12. Fine. So till we are living, the ratio of C14 to C12 in our body also is maintained a constant. But once a person dies, can I say we are not going to take any carbohydrates because we are not going to eat anything? Yes, ma'am. तो ये जो C14 है, वो C14 it starts disintegrating to C12. तो can I say C14 का अमाउंट कम होते जाएगा, C12 का अमाउंट बढ़ते जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हाँ, so from that it's a first order reaction. You know first order reaction में हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? Log K is given as 2.303 upon T. Yes, ma'am. नहीं, log K नहीं, क्या है? Log के नहीं बस के. Not K, ma'am. It's only K. हाँ, K है. इधर log of initial concentration upon concentration at final. time T. Am I right? Yes, ma'am. हाँ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C14 का जो नेचर में होता है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी दे राइट इट हियर. K का वैल्यू ये कांस्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो दे कैन कैलकुलेट द टाइम. समझा? Yes, ma'am. Yes, This ma'am. is how they actually calculate the time of death also for any person. Even age of rocks वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एज ऑफ रॉक्स, ट्रीज में तो वैसे वो बोलते हैं रिंग्स हो जाते हैं, सर्कुलर रिंग्स आते हैं ट्रीज में. हर एक साल में उनका एक रिंग आता है. डू यू नो दैट? Yes, ma'am. Yes, बार्क. Yes, ma'am. बार्क में एक सर्कुलर रिंग आता है. So counting the number of rings gives you the age of the tree also. But you can also use carbon dating for that. Yes. ठीक है. Yes. तो अब अगर मैंने, but what they observed is if they are taking a tertiary alcohol here with the labeled oxygen, if the alcohol is tertiary, then the O18 is not found in ester. Instead, it is found in water. Okay. So if the alcohol is 3 degree, then the O18 is found in water and not in ester. So now I want you to give me the mechanism of this. Chalo, try it. Are you trying it?
यस मैम 1 मिनट। मैम अंडर ट्रेसर टेक्निक वो एरो पे आपने क्या लिखा है? वो और दो ये एरोस पे नहीं, वो H नहीं, plus ट्रेसर टेक्निक के नीचे। ये हाँ photosynthesis. ओके मैम। हम ट्रेसर टेक्निक वाला चीज भी लिखना है। नहीं, not required. You just write down this one and this reaction. ये तो मैं ऐसे ही I was giving you extra knowledge. सेकंड वाला रिएक्शन वापस बताओगे? कौन सा सेकंड वाला? ये वाला? नहीं मैम, समझ गया समझ। Are you getting anything? Wait. फर्स्ट स्टेप क्या किया? I did hydrogen. Same, adding hydrogen to Hydrogen to the carboxylic acid. अरे पर वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं होगा, प्रोटोनेशन अल्कोहल का होगा। रीजन? 3 degree Yes. carbocation. हाँ, यहाँ पे कार्बोकटायन इजीली बनेगा बहुत। Am I right? यस मैम। अब ये कार्बोकटायन will go and attack the carboxylic acid. कौन से ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? ऊपर वाले। हाँ, ऊपर वाला। one. इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस। अब लास्ट स्टेप बताओ। H प्लस निकलेगा ना यस मैम। यस मैम। और एस्टर बन जाएगा। मैम आप रिपीट कर सकते हो उसने अल्कोहल को क्यों अटैक किया? क्योंकि कार्बोकटायन कौन सा बन रहा है यहाँ पे? 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब टर्शरी ब्यूटाइल वाला बन रहा है ना? यस मैम। ये तो बेंजाइलिक वगैरह से भी ज्यादा स्टेबल आता है तो टर्शरी ब्यूटाइल वाला। हाँ मैम, ओके। मैम और उसने 3 डिग्री वाले ने वो वाले ऑक्सीजन पे क्यों अटैक किया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। देखो ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन इसी को दे रहा है ना। यस मैम, मतलब जो पहले हो रहा था वैसा ही है ना? हाँ, खाली इसका फर्स्ट स्टेप अलग है ना। वहां प्रोटोनेशन हो रहा था एसिड पे, यहाँ पर प्रोटोनेशन पहले अल्कोहल पे होगा। तो अगर O18 यहाँ पर है तो O18 वाटर में निकल जाएगा।
Did you all finish writing this? 1 minute, ma'am. मैम एक सेकंड के लिए लास्ट पेज पे जा सकते हो इसके बाद? हाँ हाँ. Have you all finished? Yes, ma'am. This is done. Yes, डन ma'am. मैम, थैंक यू। अच्छा, इसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो ये वाला है. मैकेनिज्म में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये लिख लेना. द अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन द कार्बन. दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप. जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा अल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक एसिड में, उतना स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस. So steric hindrance is a rate determining factor. If the alcohol or the carboxylic acid has a bulky alkyl group, reaction becomes slow. मैम, if I नेक्स्ट take- पेज 1 सेकंड दिखा सकते, 1 सेकंड रुक सकते हैं? ये वाला, next वाला. नेक्स्ट वाला मैम. Done, ma'am. Thank you. If I take something like formic acid, acetic acid, propanoic acid, isobutyric acid, इनमें से सबसे फटाफट रिएक्ट कौन करेगा? Formic acid. First one. Okay, so this is the rate towards esterification. Bulkiness, right? Yes. Ma'am, in this order, steric hindrance takes Yes, plays a yes. role, right? Can I say steric hindrance is increasing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें बताओ. सॉरी, ये अल्कोहल है, नॉट कार्बोक्सिल. First one. Okay, fast one. करेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैम उल्टा है ना? नहीं, यही रहेगा ना. स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उतना स्लो हो जाएगा ना प्रोसेस. Yes. मैम अगर जो लास्ट वाला है अगर OH 3 डिग्री होता तो जल्दी होता, पर ये 1 डिग्री है ना. yes मैम. ना वो एकदम फर्स्ट आपने HCOH लिखा. हाँ, फॉर्मिक एसिड. इसमें SN2 होता है. SN2 ही बोला जाएगा. हाँ, यू कैन से, बिकॉज पहले वो R' अटैक करता है ना. Yes, sir. एक्चुअली SN2 भी नहीं बोला जाएगा इसमें, क्योंकि पहले अल्कोहल अटैक करता है फिर वाटर निकलता है. SN2 में क्या होता है? Simultaneous. Simultaneous. तो इसको भी SN2 नहीं, ना SN1 ना SN2, बिकॉज इसमें पहले अल्कोहल अटैक कर रहा है एंड उसके बाद वाटर निकल रहा है. Did you finish writing this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh.
मैम 1 मिनट बस दिखाना, 1 सेकेंड, लास्ट वाला हो गया मैम। Okay, now write on Victor Mayer's test. Ma'am, this is under This is esterification. no. This is a new one. Ninth. मैम होगा ना? 9th property. हाँ. This is a color test. To distinguish between primary, secondary, and tertiary alcohols. So this is a color test to distinguish between 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Alcohol is first treated with phosphorus and iodine. Phosphorus and iodine react to form PI3. What will PI3 do? PI3 will replace the OH by iodine. Now this is treated with silver nitride. Silver nitride क्या करेगा? It will replace the iodine by NO2. Iodine. Now this is treated with NaNO2 and HCl. What does this mixture of NaNO2 and HCl give you? It gives you nitrous acid. Okay. HNO2. HNO2, that is nitrous acid. How many alpha hydrogen are there in this compound? 2. So H2 यहाँ से और O यहाँ से, they are removed as a water molecule. I repeat, H2 यहाँ से, O यहाँ से is removed as a water molecule, and what you're left is with यहाँ से H2 गया और ये O गया, तो this carbon will join with that NOH. NOH बचा था यहाँ पर. This is called as nitrolic acid, which is blue in color. So this, if you add NaOH or KOH, acid base reaction होता है. Giving you salt. You'll get Na plus यहाँ पर या तो K plus, Ma'am, which has a red SNO2 color. के बाद से वापस कर सकते हैं? I'll explain the entire thing again. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, how is I replacing OH? It is PI3, na? So you'll show the mechanism how it replaces OH. My dear, I have done it. Alcohols, when treated with SOCl2 or PCl5 or PCl3, याद Okay, है? ma'am, it's like that Yes, ma'am. PCl3 reaction. हाँ, RCl. PCl. Okay, okay, ma'am. Just write this, I'll explain it once more.
Miss, Okay, did you all finish writing this? Yes, ma'am. Okay, I'm repeating this. You have started with an alcohol. You're adding Pi3, which is in the form of phosphorus and iodine. OH will be replaced by iodine. Then you're adding silver nitride. NO2 minus will replace I minus, giving you this nitroalkane. Now this nitroalkane is made to react with NaNO2 and HCl. NaNO2 and HCl combine to give you HNO2. यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, ये दो H2 और ये यहाँ से H2 यहाँ से और O यहाँ से are removed as water molecule. So this NOH now will join this carbon, giving you nitrolic acid. This is the acidic hydrogen. The base will remove this H plus, giving you salt and water. The nitrolic acid is blue in color, which changes to red on addition of NaOH. Is this understood now? Yes, ma'am. Okay. Now I'm going for the secondary alcohol. Here also the first step will remain same. OH is replaced by iodine. Second step also remains the same. Iodine gets replaced by NO2. The difference will now come in the third step when you add NaNO2 and HCl. These will combine to give you HNO2. How many alpha hydrogen does this compound have? One. So one H from here and OH from here is removed as water. तो यहाँ पर क्या बचा है? NO. That NO will join with that carbon. कार्बोकेटाइन नहीं कार्बोकेटाइन प्लस होगा ना? हाँ पर NO आ गया ना वहां पर. ओके मैम. This is known as pseudonitrile, which is blue in color. Does this have any acidic hydrogen? No, ma'am. So with NaOH, no color change. So color will remain what? Blue. Yes. Now I'm going for 3 degree alcohol. Just first write down 2 degree. मैम वहाँ पे वाटर भी निकलेगा ना थर्ड स्टेप में? हाँ. मैम सूडोनाइट्रोल क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही है ना. सूडोनाइट्रोल क्योंकि नाइट्रोल जो होता है वो NO2 होता है. ये सूडोनाइट्रोल है. मैम थर्ड स्टेप में तो वाटर तो नहीं निकलेगा क्योंकि सिंगल एच ही है. अच्छा एच हो. ये H और इसका OH ना. यस मैम.
मैम इधर कलर चेंज क्यों नहीं हो? ब्लू ही रहेगा ना, क्योंकि वो इसके साथ NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं है ना। यस मैम। मैम आप इसके बाद डाउट्स ले रहे हो? क्या 3 टाइम हो degree गया? के बाद। हाँ 3 डिग्री कर लेना तो। हाँ उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल खत्म हो जाएगा, देन आई टेक डाउट्स। ओके मैम। लिख लिया ये? यस मैम डन। Yes, ma'am. Okay, 3 degree I'm taking now. First step remains same here. Giving you iodide. Second step also remains same. You get the nitroalkane. But what when I add NaNO to HCl? Does this have any alpha hydrogen? No, ma'am. नो मैम। So no reaction. Solution remains colorless. So it's a color test to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. 1 degree alcohols in Victor Mayer first give you a blue color which changes to red on addition of NaOH. 2 degree alcohols give you a blue color in Victor Mayers with no color change observed on addition of NaOH. And 3 degree alcohols give a colorless solution in Victor Mayers. Got it? यस मैम। Yes, ma'am. Can I say I can use this reaction to distinguish between primary, secondary and tertiary alkyl halides also? यस मैम। Yes, ma'am. Can मैम I कलर use वहाँ पे this? भी सेम होएगा? हाँ. Can I use this reaction to distinguish between primary, secondary and tertiary nitroalkanes also? Yes, ma'am. यस मैम यस। Okay, so just add a point over there. This reaction can distinguish between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halides and 1 degree, 2 degree, 3 degree nitroalkanes. So this completes your monohydric alcohol. Next class I'll be starting with dihydric. Now I'll just take your doubts. TWT वाले पहले मैम मेरे एक पास- जनरल डाउट है, पूछ सकता हूँ? पूछो. मैम मेटा नाइट्रो एनिलीन है, उसमें हाँ, माइनस आई इफेक्ट, मेटा नाइट्रो एनिलीन हाँ उसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट क्यों होता है? उसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट क्यों होता है मतलब? मतलब मैम रेजोनेंस क्यों नहीं होता उसमें? नाइट्रो का रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना, NH2 का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा वो, क्यों मैम? क्योंकि मेटा पोजीशन में है. नाइट्रो ग्रुप कौन से पोजीशन से विड्रॉ करता है? ऑर्थो और पैरा से करता है ना. यस मैम। तो मैम वैसे तो सब मेटा पे वो नहीं करेगा ना? वैसे तो कोई भी ग्रुप मेटा पे रहेगा, कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो फिर रेजोनेंस मेटा पे जाता ही नहीं है किसी का भी. मतलब मैम वो जनरल सबके लिए है ना? हाँ सबके लिए है. ओके रेजोनेंस खाली काम करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन में. ओके मैम। अगर कोई ग्रुप डोनेट करता है तो वो ऑर्थो पैरा में ही देता है, और अगर कोई ग्रुप विड्रॉ करता है तो भी ऑर्थो पैरा से ही विड्रॉ करता है. ओके मैम। ठीक है. दिस वाला फिनिश राइटिंग. यस मैम। मैम पहले TWT के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बुकलेट. TWT
ओके मैम। मैम नीचे जो आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है वो किसने लिखा है? This test, Victor Mayer's test, can distinguish between all these. But it won't be able to distinguish between 1 degree alcohol and 1 degree alkyl halide, right? No, 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 no. Okay. Because both 1 degree alcohol and 1 degree alkyl halide and 1 degree nitroalkane will give you the Red same color. ठीक है, done with this? डन मैम। Okay, is the paper visible to you? यस मैम। यही पेपर है? यस मैम। हाँ मैम, यही 31st वाला समझा नहीं था। हाँ, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था सबको? यस मैम। Yes. ब्रोमीन एंड Fe। ब्रोमीन और Fe था ना उसका आंसर? मैम FeBr3 के साथ वही वाला। हाँ हाँ, वही। ओके मैम। 32 आ गया था? आ गया मैम। Yes, miss. Yes, miss. मैम 33 नहीं आया। क्यों? नहीं मिस हो गया। अरे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ये वाला, ये Yes, वाला। miss. Yes, यस miss. मैम। तो यही जाएगा NO2। ओके ऑप्शन मैम। बी। हाँ 34 मैम 34। यस मैम। Yes, miss. द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन, यहाँ पे कहना है से Br प्लस बनेगा। यस मैम। Yes, miss. तो Br प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, राइट रिंग या लेफ्ट रिंग? मैम Right राइट ring, होना right चाहिए ring, ना? right ring होना हाँ, चाहिए। राइट रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन है। ऑप्शन बी ना मैम? हाँ मैम पर इधर तो ऑप्शन सी सी भी भी है। है। हाँ मिस। हाँ मैम, ऑप्शन सी दिया। मैम नहीं, ये नहीं, नहीं। जीओसी में भी करवाया था आपने ये वाला क्वेश्चन? मैम ये हाँ, बुकलेट में है। हाँ मिस, हाँ, और तो- मिस टेस्ट में गलत दिया। हाँ मैम, हम लोग को नहीं, माइनस। नहीं नहीं नहीं, तो +5 ऐड कर लो अपने स्कोर में। ओके मैम। ओके 35। आ गया मैम। Easy, 36 easy था मिस। यस मैम 36 मिस ए ग्लायोक्सिल। ग्लायोक्सिल क्लास में ग्लायोक्सिल। किया है मैंने। क्लास में किया है मैंने। यस मैम। यस मैम। ये ब्रेक होगा, ये बनेगा ना, इसके कितने मोल्स बनेंगे? 3. मिस 3 3 मोल। मैम, 3 मोल। ये आ गया था? मैम एक ही तो है, Yes, ग्रिग्नाट मैम, तो वैसे भी नहीं है, दूसरे तो है। Riddle crafting. रिडल स्मार्ट ठीक है। 38 आ गया था? यस मैम। Easy। ये सबसे एक्टिवेटेड है टॉलुइन, फिर बेंजीन, Yes, फिर ये, फिर ये, फिर जो ये, ऑर्डर हाँ। दिया है वही ऑर्डर है। यस मैम। इजी। चलो बिकम स्मार्ट है ना। नॉट स्टूडेंट। इसमें क्या किया? रिमूव हाइड्रोजन। प्रोटोनेशन किया, यस मैम। Yes, प्रोटोनेशन मैम। हुआ। ये निकाल दिया, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो गया, कार्बोकटाइन यहाँ बना, करेक्ट? यस मैम। मैम यस मैम। वो बेंजीन को जाके अटैक करेगा, तो आंसर ये है, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। 40th मैम इसको सी, ये आगे आ गया। गैमेक्सिन था, गैमेक्सिन। ये आ गया था 41, ये वो भी आ टेबल से ही गया आ मैम, आ गया। गया। ओए हाँ 42 आ गया था। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एक डबल बॉन्ड का इतना है तो 3 डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए? सो दैट इज 28.6 into 3। माइनस। हाँ, उसमें से 50 का हटा दोगे। यस मिस। यस मिस। यस मैम 35.8। हाँ, मैम 40 थोड़े बता। हाँ मैम। इजी था, इजी था। इसमें देखो ये दोनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है बेंजीन को, एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों ऑक्सीजन रेजोनेंस से देंगे बेंजीन में,
हम तो समझ ऐसे रहे भी हो? ले सकते हैं ना कि ये दोनों ऑर्थो में है तो ये ज्यादा नहीं वैसे नहीं, अभी यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जो है वो वन दे रहा है विड्रॉइंग एंड वन पर ये ले रहा है। अब यहाँ पे तो ये दोनों ले रहे हैं। ओके मैम। सो 3 2 to 1। 1 हाँ उल्टा मैम। हाँ इंक्रीजिंग रेट, हाँ 1 2 3 बस ये नहीं जमा, 44 भी बताओ ना। हाँ हाँ मैम। मैम। बस ये नहीं हुआ। Okay, I'll tell it to you. Friedel cross acylation है, am I right? Yes, ma'am. Yes, Yes ma'am. मैम। हाँ अब ये कार्बन देखो, रुको मार्कर का, हाँ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन है सारे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से होगा आप बताओ? ऊपर वाले कार्बन से उससे। इसमें बस H है ही लेफ्ट नहीं, वाले। हम इसमें नीचे H ना है ही आते हैं, नहीं। सबसे बस- नीचे वाला। यहाँ पर हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, नो मैम। नो में सबसे No. नीचे वाला। सिर्फ यहीं पे 2 हाइड्रोजन है Yes, 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 ma'am. Yes, तो ma'am. ये ही डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऑर्थो पोजीशन को। मैम तो फिर बी होएगा ना आंसर। आंसर बी होगा, हाँ समझा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम क्योंकि बाकी दो पोजीशंस पे अल्फा एच है ही नहीं। हाँ है ही नहीं ना, ओके तो मैम। ये कार्बन ज्यादा एक्टिवेट करेगा ना रिंग। यस एक बार इसका मैकेनिज्म बताओ ना। मैकेनिज्म मतलब ये बनेगा ना, असाइलियम आयन बनेगा। ये असाइलियम आयन इधर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रेजोनेंस से इधर इलेक्ट्रॉन्स देंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। टफ था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा। yes, ma'am. ये नहीं आया था। राइट। मुझे आंसर सी है। किसका? अरे आंसर सी कैसे है? इसका आंसर बी होना चाहिए। वो options थोड़े अरे नो shifted मैम, है वो नीचे। नहीं सी है, सी तो है, सी सी तो है। सी ये करेक्ट है ऐसे मिस। ये ऐसे नीचे लिखा है ना उन्होंने। अच्छा डी दिया ही नहीं है क्या? एक सेकंड, एमएस डी दिया है डी ना। इसके दिया था ऊपर मैम, है। इसमें नहीं है। नहीं दिया था अभी। ये ए है, ये ए है, ये बी है। बस डी दिया है ना। हाँ आंसर सी है, सी सी दिया है ना सी है। आंसर। हाँ Yes, मैम। ma'am. यस मिस, यस मिस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिग्मा। प्रोसेस, हाँ ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिया था मैंने, याद है? Yes, ma'am. यस मिस। नाइट्रेशन का रेट कौन सा है? 46 का। सेम रहता है। Same rate. Same. हाँ 47 SNAR है। मिस 46 का किया था। 46 का ए होगा ना। हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम हो, दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड एट द सेम रेट ना नाइट्रेशन ओके में। मिस। 47 इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने 2 मैकेनिज्म्स किए हैं, एडिशन एलिमिनेशन और एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है। इसका एडिशन एलिमिनेशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, करेक्ट? Yes. So this is going to react the fastest. $48 आया। ए। ये तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। यस अगर मैंने मैम। ब्रोमोबेंजीन लिया और उसका नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आ सकता है, am I right? यस मैम। Yes, ma'am. तो आ गया, बाकी सब हाँ, देखने की वो- जरूरत भी नहीं Yes, है। ma'am. मैम बाकी वाले क्यों नहीं दे चेक किया आपने? ठीक है बता देती हूँ। यू आर टेकिंग ब्रोमोबेंजीन एंड यू आर ब्रिंगिंग सल्फोनेशन। H2SO4 के साथ क्या होगा? SO3 I'm going to get this product, not the other यस one. मैम। नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा? मेटा। Only para मेटा पे जाएगा Br, मेटा पे। जाएगा, पर मुझे ऑर्थो पे चाहिए, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। और HBr तो रिएक्ट करेगा ही नहीं नाइट्रो। HBr में Br माइनस होता है, Br माइनस बेंजीन को नहीं अटैक करेगा, करेक्ट? यस मैम। यस ओके। मैम। ये तो सेम एग्जांपल मैंने क्लास में ए। दिया। यस मैम। Yes, miss. A. यस मैम। सी 50th आया था। Yes, ma'am. I. नहीं मैम, ये एक्सप्लेन कर मैम सकते नहीं हो आप। आया। वो नहीं explain. नैफ्थलीन में कौन से पोजीशंस एक्टिव होते हैं? ये वाले। 1 4। हाँ 1 4 5 8, करेक्ट? यस मैम वही। तो पहले जब इसका Cl निकलेगा इधर C पे प्लस आएगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा, करेक्ट? यस मैम। फिर Yes, वापस ma'am. सीरियल निकला। फिर वापस एक और Cl निकलेगा, इधर प्लस आएगा, वो इधर अटैक करेगा।
तो कितने मेंबर ड्रिंक बन जाएगा यहाँ पर? 4। 5 ना? हाँ हाँ मैम 5 सॉरी। ये भी कार्बन है ना उसमें? हाँ हाँ मैम। फिर इसका रिडक्शन किया है क्लेमेंसेंस, ये और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा क्लेमेंसेंस, तो आंसर सी होगा। समझा? यस मैम। Yes, ma'am. मैम Okay. इसमें NO क्या है? अरे इसके बाद लोन पेयर है ना, हाँ लोन पेयर मैम। होता है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, बताया था मैंने। मैम जो 9th वाला Ninth ग्रुप है वो वाला? कौन सा है? हाँ Yes, मैम वही। 9th वाला लोन पेयर है ना? मैम ये आपने चार्ट में लिखवाया नहीं है इसलिए। हाँ मस अच्छा ठीक है, पर ये ठीक। ऑर्थोपैरा ही होगा। हाँ मैम मैंने तो डाल दिया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब क्या? बस नंबर ऑफ रिंग्स प्लस Two. नंबर ऑफ 5 bonds. D यस हाँ। मैम 10। ये आ गया था। यस मैम। Yes मस टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आए? 10 आए। नहीं आया। नहीं आया मैम। नहीं अटेम्प्ट किया। मैम -1 क्यों दिया ऊपर? एक मिनट, 9 कार्बन लिखने दो। 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए कि नहीं? हाँ मिस 9 है। मैम ईटी मेटा डायरेक्टिंग ओ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। क्या? मैम ईटी इधर क्या होगा? ईथर होगा क्या? ईटी क्या होता है? ईटी कहाँ लिखा है मैंने? ऊपर है मैम मैम। वो ऊपर इथाइल है वो। इथाइल ग्रुप होता है। C2H5। यस मैम। C2H पे मैम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है क्या? हाँ, क्योंकि हाँ। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना उसमें। ओ हाँ यस यस। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? दिस इज C9H9 -1। मिस तो 1 वो 2 नेगेटिव भी 3 अंदर 4 आएगा। 5 6 7 8 9, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। 10। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्राइमिथाइल बेंजीन कितने मिले? ये होगा ट्राइमिथाइल, 3 मिले। ये होगा ट्राइमिथाइल, मैम 3 मिला। यस 3 मैम। मिला हाँ मैम। ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोनाइट्रोबेंजीन 6 मिला मैम। हाँ मिला मिस ये? बनाना। Yes, ma'am. मिस एक बार दिखाओ दो। यहाँ लिखूंगी तो सेम हो जाएगा, है ना? राइट। यस मिस। Yes miss. यहाँ पर भी लिखूंगी तो सेम हो जाएगा। Yes इसकी वजह मस से। Yes. यहाँ पर लिखूंगी तो सेम हो जाएगा इसके जैसे। यस मिस। करेक्ट। Yes ma'am. अब NO2 कहीं पे भी लिखूं सेम ही होगा, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 6। 6। गॉट इट? यस मैम। यस मिस। हाउ मेनी रेजोनेटिंग फॉर्म? एंथ्रासीन के कितने? N+1। N+1। वेरी गुड। N+1. ये भी आ गया था। यस मिस। मैम उसने 57 में 1 आइसोमर कैसे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में कोई भी एक एक ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आएगा ना आइसोमर। हाँ मतलब वही ना, प्रोडक्ट एक ही तो उसके आइसोमर्स थोड़ी होंगे। यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए। सेम। सपोजिंग नया क्लोरीन आ गया तो इसके आइसोमर्स थोड़ी होंगे, यही होगा ना, यही कंपाउंड होगा। यस मैम। 58 आ गया था। नहीं मैम। मिस देखा ही नहीं। यस मैम अटेंड नहीं किया है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है मोर देन फिनॉल? फिनॉल से कंपेयर करना है, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा फिनॉल से, क्योंकि यहाँ पर और Yes, एक ma'am. एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यस मैम। ये नहीं NH2 होगा, होगा। ये होगा। समझा? Cl क्यों नहीं? Cl डीएक्टिवेटिंग होता है ना। मैम फिनॉल से मैम वो चार्ट आपने दिया था वही था ना इसमें?
अभी देखो फिनॉल से मुझे कंपेयर करना है, तो ये फिनॉल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है? प्लस डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि मिथाइल ग्रुप भी डोनेट कर रहा है, एम आई राइट? यस यहाँ पे फिनॉल है पर यहाँ पे साथ में क्या है? विथड्रॉइंग। Withdrawing group. यहाँ पे भी फिनॉल है पर साथ में क्या है? Means halogen विड्रॉइंग लेता है। है. विड्रॉइंग है ना, यस ये मैम भी एक्टिवेशन है ना। इसका माइनस साइज ज्यादा होता है ना प्लस यस आर, Yes, मैम। miss. Yes, ma'am. इसका प्लस आर ज्यादा है तो ये डोनेट करेगा। यस मैम। Yes, इसका ma'am. भी प्लस आर ज्यादा है तो डोनेट करेगा। गॉट इट? Yes, ma'am. वैसे 5 तो आ गए होंगे इसमें आराम से आप लोगों में। Yes, हाँ, miss. Yes, ma'am. हाउ मेनी आर एरोमेटिक? मैम मैम ये इसको सॉल्व ही करो। नहीं किया है। वही ये मैम। करेंगे। मैम 1 2 3 4 2 नहीं है, 2 नहीं है। हाँ सॉरी मैम 2 नहीं है। और वो मैम NH वाला बस मैम। यही है एरोमेटिक। इसमें तो ये देखो ये एच होता है ऐसे, याद है मैंने करवाया था एडेनिन है शायद। ना मैम। Yes, ma'am. तो ये रिपल्शंस की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है, याद है? ये करवाया हुआ Yes. शायद। यस मैम यस मैम। मैम वो वाला कैसे, इसके ऊपर वाला? हाँ मैम ये वही। यस बेंजीन मैम। रिंग आ गया ना, एक भी बेंजीन रिंग आ गया तो एरोमेटिक हो गया। ओके। ठीक है, साइड चेन मत देखो, फिर एक भी बेंजीन आ गया तो एरोमेटिक हो गया। हाँ यस मैम। ओके मैम। Okay, last question. How many of the given compounds the Se would occur in ring A? मतलब यहाँ पर can I say ring A यहाँ पर होगा क्योंकि donating group है। यस मैम मैम। ऐसी का। यस मैम। Yes, miss. Electrophilic substitution ना, यस मैम। यहाँ पर ring B में होगा, correct? यस मैम। Yes, miss. ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है इससे, तो B में होगा। इसमें रिंग B दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको, am I right? यस Yes, मैम। ma'am. यस रिंग A में एक साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है पर एक साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो A में होगा इधर। इसमें भी A में होगा। क्यों A में Yes, होगा? ma'am. B इलेक्ट्रॉन में डोनेटिंग withdrawing है. ग्रुप। ये डोनेटिंग है और ये विड्रॉइंग है। इजी तो था पेपर पूरा, डिफिकल्ट लगा? नहीं, ma'am. हम ओके था। मैम फुल मार्क्स आने चाहिए थे। कहाँ पे गड़बड़ किया? मैम वो बीच Miss, में वो दो तीन इसमें अजीब नहीं, क्वेश्चंस। नहीं। आए ऊपर गलत हो गया. मैम 50 आ था ना। अच्छा, बाकी तो आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल पेपर। ये एक नहीं आया होगा, चलो Yes. 44 हाँ मैम वो भी। 44 नहीं आया होगा। मैम ऐसे सवाल JEE में पूछता है, इससे भी हार्ड के पूछते मेंस में। इससे इजी होता है, मेंस के क्वेश्चन इससे इजी होते हैं। ठीक है, ओके। ये टफ था पेपर मेंस के लिए, but we always keep little tougher than what is expected. And why are we supposed to do that? because पेपर में आ गया टफ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। so that it's टफ आ गया तो ऐसा नहीं हो तुमको देख के अरे बाप रे ये क्या आ गया, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। करेक्ट? बस मेंस में Yes. ऐसे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ कोर्स मेंस इज अच्छा, मच okay, ma'am. मैम एक जनरल डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ लो। मैम आपने जो प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया था ना, उसमें क्लोरीनेशन वाला स्टेप आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा क्लोरीनेशन वाला? मैम अल्कोहल का क्लोरीनेशन होता है। अरे हाँ, इसमें सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो लिखे हैं ना हमने यस मैम। अल्कोहल्स में, उसमें ये भी ऐड कर दो। This is also selective oxidizing agent. It oxidizes alcohols having this group. ये alcohols को oxidize करता है। NaOH and chlorine, या तो NaOH iodine ले सकते हो या NaOH bromine ले सकते हो। ये haloform reaction है, am I right? They can also write it as NaOCl. I have told you this. Have I told you this? नहीं, ma'am. मैम नहीं समझा आप ये रिएक्शन। इसमें मैंने अगर NaOH और क्लोरीन ऐड किया तो क्या बनेगा? I'll get chloroform ना।
यस मैम। कैसे बना ये? देखो इसका मैकेनिज्म अब। वैसे आपने करवाया है ना? हाँ, पहले क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनेगा? हाँ मैम, ये कैसे बना आप बता सकते हो? यहाँ से H निकला ना, HCl। ओके देखो मैम, ऐसे बस उतना ही हुआ। ये निकाल देगा क्लोरीन और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझा? ओके मैम, ओके, मैम यही आप, डाउट था। फिर एक और OH माइनस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, करेक्ट? यस Yes, मैम, और फिर वहां पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन ब्रेक होगा, Cl हेट्रोलिटिकली। Cl प्लस उसको यस अटैक मैम, करेगा। ऐसे 3 बार होगा, करेक्ट? यस मैम, क्लोरल। तो 3 बार होने के बाद you'll get क्लोरल। फिर वापस क्या होगा? OH माइनस आएगा, इसको अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड, am I right? यस मैम, एंड CCl3 माइनस। फिर क्या होगा? ये अपना H प्लस इसको दे H देंगे। plus um, हाँ, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ये, क्योंकि एसिड का सॉल्ट बन रहा है, am I right? मैम अल्कोहल से क्या बना रहे हो? एसिड बना रहे हो ना, विद 1 कार्बन लेस। यस मैम। सो इफ आई मैम, हैव सम, हाँ बोलो। मैम इसमें आपने ये जो लास्ट स्टेप लिखा ना, आपने मैकेनिज्म में वो लिखा था, और उसके पहले आपने जब सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा था उसमें आपने दिखाया था कि CaOH का H अटैक करता है एंड में क्लोरल को। CaOH का? नहीं नहीं CaOH। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैकेनिज्म से यू शुड गो ऑलवेज। ओके, तो वो फॉलो नहीं करना है। नहीं 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 नहीं। ओके, ओके मैम। मैम आप ऊपर का बता सकते हैं, आप कुछ बोले थे नोट डाउन करके अभी सिलेक्टिव क्या? ऑक्सीडेशन। नहीं, आई डिडंट गेट। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में आप अभी बोले ना मैम कुछ हाँ, you can write this under selective oxidation, because this reagent will oxidize only this type of alcohols. Alcohols having CH3, CHOH. ओके मैम। So if I take something like this, give me the product here. CH3 निकलेगा। क्लोरोफॉर्म, Iodoform. नेक्स्ट Iodine आयोडोफॉर्म replace। सर। iodoform. Iodoform yellow solid होता है, तो yellow यस मैम, पीते हैं। यस मैम। और साथ में क्या बनेगा? मैम फॉर्मिक एसिड या कोई एसिड बनेगा ना? फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोप एसिटिक एसिड। मतलब दो नहीं। कार्बन वाला। प्रोपेनॉइक। सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये पार्ट जाएगा एज Propane। आयोडोफॉर्म, करेक्ट? यस 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 मैम, मैम। और ये आपका एसिड बनेगा, समझा? मैम प्रोपेनॉइक एसिड ना? हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। हम प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ हाँ, मैम कॉपी कर। मिस ये रिएक्शन किधर कराएगा? क्या? ये वाला रिएक्शन किधर कराएगा? अरे हैलोफॉर्म का प्रिपरेशन भूल हाँ गए? यस। हाँ यस। इसको रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन ही बोलते हैं। क्या मैम ये पिनाकोल का रिवीजन है क्या ये? पिनाकोल का नहीं है माय डियर, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन भी उसमें लिख सकते हो, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अच्छा कंटिन्यूएशन है क्या मैम? क्या है? कंटिन्यू कर रहे हैं क्या वो फिनॉल के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, अभी आई एम गोइंग टू दैट aromatic hydrocarbons. मैम This आप was a doubt, so I just cleared it. मैम आप पिनाकोल भी एक बार ब्रीफ में कर सकते हो अगर आप मैम नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो आप? Pinacol, I told you, my dear, I'll be doing when I take diols. यस मैम एमटी में नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ओके मैम। आई होप नहीं आएगा क्योंकि एमडी का मैंने बोला, मैंने फिजिकल बनाया। यस मैम। वैसे एक और लेक्चर है ना अभी उसके पहले? नहीं है मैम। हो मैम गया मैम कल सब। परसों एमटी है। अच्छा, परसों है एमटी तुम लोगों का?
Yes, ma'am. ma'am. Oh wow, nice. क्या है प्रॉब्लम पिनाकोल में बताओ? मैम आप पूरा रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया था वो टाइम। What is a pinacol? It's a highly substituted glycol, na? यस मैम। You're adding dilute acid. Dilute acid will give H plus. यस मैम। तो प्रोटोनेशन होता है कोई भी एक जगह पे। वो डिसाइड करना है कि कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे तो कहना है से ऑल द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। सेम यस मैम। तो कार्बोकटाइन सेम ही बनेगा दोनों जगह, am I right? यस मैम। तो कोई भी एक जगह प्रोटोनेशन करके कार्बोकटाइन बना दो। यस मैम। अगर अलग हुए तो यू हैव टू सी द कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यस मैम। ओके। उसके बाद क्या होगा? मिथाइल इसमें से शिफ्ट होगा। अल्काइल शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ही। Ma'am, can you label the pinacol and pinacolone? फिर इससे H प्लस निकल जाएगा। Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पिनाकोल है ना, कोल कोल ऑल Yes, ऑल ma'am. ऑल मींस अल्कोहल। यस मैम। और इसमें से जब H प्लस निकलेगा तो यू विल गेट द कीटोन व्हिच इज Colone. दिस इज Got योर it, पिनाकोल। ma'am. ठीक है? यस मैम। थैंक यू। I'll stop this I'll clear this off. यस मैम। अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चाहिए बुकलेट? Tell me, or are you tired? I'm very I'm tired. also very tired. I'm very tired. कॉलेज भी होता है इसके बाद। यस मैम। मैम ठीक है, so I can stop here. Dihydric I'll start in the next class. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you ma'am. so much, ma'am. एरोमेटिक देखेंगे अब कैसे करेंगे। I don't think you need more of aromatic. कितना तो किया है एरोमेटिक। जो डाउट्स है ma'am. खाली थोड़ा सा doubt वो है। पूछ लेना मुझसे। हाँ, जो डाउट्स है वो पूछ लेना। ठीक है? एक Yes, काम करो, डाउट्स है ना, तुम लोग आपस का कोई ग्रुप है तुम लोग का आपस में हाँ, ma'am. अलग? तो one person can do what? Just take all the doubt questions from all the students and just share the doubt का question numbers on the group. Fine? जो मेरे साथ का ग्रुप है ना, Okay, ma'am. वो सारे question numbers सारे share कर home लेना। assignments का। So then I will just do only those questions and complete that in an hour's time. Fine? मैम ma'am. सारे होम असाइनमेंट्स का मतलब सारे। You have to complete it. Have you completed that? What about alkyl and aryl halides? मैम Have you एल्काइल completed? का एक Ma'am, उसका assignment बाकी है। करके जाएंगे चलेगा ना एमटी में? और कब हो रहा है वो कोकोनट ब्रेकिंग सेरेमनी alkyl and aryl halides का? मैम हो गया है, सब थोड़े Ma'am, MT के बाद। Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा था, रिक्वेस्ट भी किया था कि वो कंप्लीट कर लेना। उसका बस एक अभी करेंगे टाइम तो नहीं मिला चलेगा था। ना अभी? मैम, उसका एक करें बहुत ज्यादा है उसमें से। यस मैम थोड़ा एक hard में भी 40 है। रोहन, what are you asking? This is the page we have to write in the notes. हाँ, you please write this in the notes. Not this one, this one. ये वाला जो है you have to write. Okay, रोहन. Those who are done can leave. मैम All the best for your MT. हाँ, बोलो। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम में आइसोप्रोपाइल का मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है मैम। आइसो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, आइसो अल्काइल। इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल ही बोलते हैं। बस ये ग्रुप दिख गया तो आइसोप्रोपाइल ही लिखना है। ये ग्रुप, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके मैम, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे। हाँ, ओके। और मैम अगर पेंटेन होता तो आइसो पेंटाइल कैसा दिखता? आइसो में भी मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होगा और यहाँ पर कुछ भी लास्ट कार्बन पे कुछ भी होगा। ये चेन कितना भी लंबा हो पर सेकंड कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। सेकंड कार्बन पे हमेशा मिथाइल ही होना चाहिए ना मैम? हाँ हाँ हाँ। ओके मैम मैम alkyl बट आइसो प्रोपाइल में वैसा नहीं होता कि मिथाइल होना चाहिए। देखो अब मैं बता रही हूँ, अब ध्यान दो।
इसको क्या बोलेंगे ये ग्रुप को? isopentyl. एसोपेंटाइल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूट। इसको प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। समझा? हाँ हाँ मैम. Got it? यस मैम। Yes मैम. मैम बस सेकंड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो सकता हाँ, समझा? है। यस Yes मैम। मैम. ओके, मैम Thank you, ma'am. एराइल का एक क्या ही है? एक्सरसाइज करेंगे, चलेगा अभी के लिए? हाँ ठीक है, पर नोट्स कर लेना अच्छे से. ओके मैम। डू द नोट्स नाइसली. हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, चलो बाय Thank you, ऑल ऑफ यू. ma'am. ऑल द बेस्ट. थैंक थैंक यू मैम। बाय Thank you, मैम। ma'am. बाय प्लीज। Thank you मैम. ओके.